Okay, sir. Good morning, students. We are doing chapter 9, internal trade, and we have already discussed meaning, features, and services or utility of retailer towards wholesaler and towards consumers. We have already discussed. Hai na? Next topic is types of retailer. Okay, so dear students, there can be many types of retailers from the point of view of convenience of study. So we can divide it into two main parts. First is the itinerant retailer and second is the fixed shop. You can see in this diagram. First is the itinerant retailers. It has divided further parts. There are mainly four types. First is the hawker and peddlers, cheap jacks, pavement traders, weekly market traders. And second type is the fixed shop, further subdivided into two parts, small scale retailer and large scale retailers. Okay, and small scale retailer types, first is the general store, second is the single product shop, third is single line stores, fourth is the wooden stalls, and fifth is the inferior goods shops. And in large scale retailers, there is the departmental store, supermarket or super bazaar. Third is the malls. Fourth is the chain store and multiple shops. Fifth is the mail order business. And sixth is the consumer cooperative store. Okay. So let's see one by one. First is the itinerant retailers. What do you mean by itinerant retailer? So those traders who have no definite selling point. Okay. Means it refers to retailer who have no fixed place of sale. इनका कोई fixed place नहीं होता. They move from one place to another in search of customers. They are also known as mobile vendor. Okay. और ये low prices पे deal करते हैं. They deal in daily use item. Mostly daily use की items इनके पास रहती हैं. Require small investment. बहुत कम सामान अपने पास रखते हैं ताकि वो सेल हो जाए और फिर नेक्स्ट वो परचेज करें. ठीक है. तो इनके आगे फर्दर पार्ट्स क्या हैं? First is the hawker and peddlers. Hawkers and peddlers move from street to street in search of customer. आप देखते होंगे सब्जी वाले, रेडी वाले या कुछ और भी सामान कई बार सेल करने आते हैं जो घर में डेली रूटीन में यूज करते हैं आप. So hawker carries the goods on wheeled cart. ये तो wheeled cart पे होते हैं. और ऑन द बैक ऑफ द एनिमल या फिर किसी एनिमल के ऊपर, जैसे कि घोड़ा गाड़ी होती है. एंड पेडलर कैरीज द गुड्स ऑन हिज ऑन हेड और बैक, या फिर कई बार अपने हेड पे या बैक पे भी उन्होंने सामान रखा होता है. सो द मेन फीचर्स क्या है इनके? दे मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट या फिर इन बसेस, इन ट्रेन्स, इन सर्च ऑफ कस्टमर. सेकेंड, दे सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स. इनके पास बहुत सारी गुड्स होती है लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टॉयज, बैंगल्स. ओके, इस टाइप में. एंड थर्ड इज दे डील विद नॉन ब्रांडेड एंड लोकल आइटम्स एंड दे सप्लाई द गुड्स एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर. आपके घरों तक आते हैं ये लोग, सप्लाई करते हैं आपको गुड्स की. दे हैव नो फिक्स प्राइस, मतलब इनके साथ आप बार्गेनिंग भी इजीली कर लेते हो. ओके, जो रेट अगर उनको और आपको कस्टमर को जो भी सूट करता है उस रेट पे वो सेल कर देते हैं. सो सेकेंड इज cheap jack. They display their goods in hired show or tent for a temporary period in different localities. इनके मेन फीचर्स क्या हैं? वैसे ये क्या हो, these traders aimed at taking advantage of some local events, like some temporary shops or some open space or rent and carry on their trade. मतलब ये जगह बदलते रहते हैं और एक जगह इन्होंने रेंट पे ले लिया. अब उस जगह पर जब तक ये वहां रहेंगे, जब तक इनकी कस्टमर आते रहेंगे या जब तक उनको लगता है कि हम लोगों को इजीली यहाँ पर मतलब अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है, तो तब तक वो वहां का एडवांटेज लेते हैं. और जब उनको लगता है कि इसके बाद अभी यहाँ पर इतना अपॉर्चुनिटी है जो प्रॉफिट नहीं लग रहा है, तो वो उस प्लेस को छोड़ के किसी और नेक्स्ट प्लेस पे चले जाते हैं. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये उस पूरे एरिया को ही रेंट पे ले लेते हैं. ओके. थर्ड इज द पेमेंट ट्रेडर्स.
These traders sells their goods from the footpath. जो साइड में आप देखते हो कि जब मार्केट जाते हैं तो फुटपाथ पे ही, रोड साइड पे कुछ लोग बैठे होते हैं और ये भी डेली रूटीन का ही सामान रखा होता है इन्होंने. So it is very easy for the customer to purchase things from them. So we find these traders in our way. आप रास्ते में भी देख सकते हो. Without spending much time, we can buy things of our liking. अगर हमें कुछ पसंद आता है तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और हम सीधा देख के उस चीज को परचेज कर सकते हैं. Fourth is the weekly market traders. In big cities, weekly market are held in different parts of the city. जैसे हमारे यहाँ करनाल में संडे मार्केट लगती है, आप देखते हो 12 सेक्टर में. So in such market, things of daily use are available at the reasonable prices. आपको यहाँ पर भी रीजनेबल प्राइसेस पे सामान मिल जाता है. इवन करन मार्केट में भी संडे मार्केट होती है. आप कुछ भी अपना डेली रूटीन के लिए और रीजनेबल प्राइसेस पे आप वहां से सामान अवेलेबल कर हो जाता है. ओके. Next point is a fixed shop. So on the basis of fixed shop, retailer can be divided into two parts: small scale retailer and large scale retailer. Okay. Small scale retailers are the most common form of retailers. These shops are found in every corner of most cities. They are mostly situated in localities to fulfill the needs of people residing the local areas. Okay, small scale fixed shop में mainly जो आते हैं वो आते हैं general store. General store means goods of daily use which are of good quality are sold through the general store. Okay. General store are small shops located in residential area. आपके घरों के आसपास ही आपको general store easily मिल जाते हैं क्योंकि हर घर के जो भी डेली रूटीन का हमारा जो सामान होता है वो सब हमें अवेलेबल होता है वहां से. So main features of general store: these stores deals in item of daily use like groceries, confectionery, stationery, soft drink, etc. Second, they have large variety in each line of product. Third is they provide free home delivery. अगर आप सामान वगैरह लिखवा के भी आ जाते हैं उनको नोट डाउन करवा देते हैं और उसके बाद वो आपको होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाते हैं. क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं. इवन अदर सर्विसेज भी, जो भी रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको कई सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं. They create personal relationship with the customer and keep them happy and satisfied. And general store located in posh areas also keep popular brands of products. इनके पास आपको हर तरह के ब्रांडेड सामान भी मिल जाते हैं. Okay. And second point is single product shop. Single product shop, these traders sells only one kind of product. जैसे कि नाम से क्लियर है आपको कि single product. The product they deal in is in found in the different variety of their shops. अब वो सिंगल, जैसे आपके पास पिक्चर भी है आप देख रहे हो, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स या मतलब ये स्पेशली बच्चों के लिए हो सकता है, फीमेल के लिए हो सकता है, मेल के लिए हो सकता है. ओके. एंड for example, children garments, religious books. A trader dealing in the children garments sells only the garments meant for children. अगर वो चिल्ड्रन के लिए है तो इसका मतलब सिर्फ वहां पर आपको चिल्ड्रन के लिए ही गारमेंट्स यानी कि कपड़े वगैरह मिलेंगे. He has a variety of these garments in different sizes and the different companies. आपको काफी ब्रांड्स के सामान वहां मिल जाता है, हर साइज के बच्चे का सामान मिल जाता है. Similarly, a trader who sells only religious books, अगर मान लो कि उसके पास सिर्फ रिलीजियस बुक्स की ही उनको शॉप है तो वहां पर आपको हर तरह की रिलीजियस बुक अवेलेबल होती है उनके पास और वो मिलेंगी. Such traders do not sell books on the other subject. वो किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वो आपको बुक्स नहीं मिलेंगी वहां पर. ठीक है. Then third is the single line store. So these traders trade in a single line trade. For example, if in place of shop dealing in children garments, ready-made garment shop is opened, such a shop will make available ready-made garments not only for children but also for the young. सिंगल लाइन है ये, उसमें सिंगल प्रोडक्ट था, इसमें सिंगल लाइन है. मीन्स अब अगर वो गारमेंट्स की शॉप है तो वहां पर बच्चों के साथ साथ यंग, ओल्ड, वुमेन, मैन, इन सब के गारमेंट्स भी वहां पर अवेलेबल हो सकते हैं. तो such a shop is called single line store. Similarly, if a book shop instead of shop of dealing in religious, मतलब वो सिर्फ religious books के लिए ही नहीं ओपन हुई है,
All types of books will be available in such a shop. So this is also a good example of single line store, right? अब उसमें आपको हर तरह की बुक अवेलेबल हो सकती है. Next is the wooden stalls. Wooden stall. So these shops are usually carried on the through wooden stall. These days we find fixed stores prominent places. Things of daily use are made available at such a stalls which are really low priced. जो डेली रूटीन की चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वुडन स्टोर होते हैं उन पे डेली रूटीन की आपको चीजें मिलती हैं. लाइक जैसे आपके सामने पिक्चर है, ये कॉफी का है, ये बना हुआ स्टॉल, कॉफी स्टॉल. ऐसे ही न्यूज़पेपर के लिए हो सकता है, मैगजीन्स के लिए हो सकता है, बटर, ब्रेड, कोई स्टेशनरी का सामान, फ्रूट जूस हो सकता है, कुछ भी इस तरह से. और आजकल तो जैसे आप देखते हो मोमोज और ये गोलगप्पे वगैरह, इन लोगों के भी ऐसे ही वुडन स्टॉल होते हैं. ठीक है ना. तो इस टाइप में ये वुडन स्टॉल भी एक इसका एग्जांपल, इसका एक टाइप है. ओके. रेलवे स्टेशन पे आपको मेनली ये दिखते हैं, ओपन होते हैं वहां पर. ऐसे ही सिनेमा घर, सिनेमा हॉल्स हैं, बस स्टैंड हैं, स्ट्रीट कॉर्नर्स हैं. ओके. नेक्स्ट इज द inferior goods shops. These shops sells goods of inferior quality of things which are not in fashion. Inferior आप समझते हो ना, जो थोड़ी लो क्वालिटी होती है. Their prices are very low. ये उन लोगों के लिए होता है जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और ज़्यादा ब्रांडेड और कॉस्टली चीज़ें नहीं परचेज कर सकते. ठीक है ना. एंड उनके लिए ये शॉप्स जो है वो ओपन होती हैं. इसमें मोस्टली जो सेल किया जाता है क्लोथ, बुक्स, वुडन मटेरियल एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट टाइप इज लार्ज स्केल रिटेलर्स. लार्ज स्केल रिटेलर्स डील इन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स. नाम से क्लियर हो रहा है आपको, जिसमें बहुत ज्यादा स्टॉक रखेंगे वो गुड्स का. एंड परचेज गुड्स इन बल्क. वो बहुत ही बिग अमाउंट में परचेज करते हैं गुड्स को. इनके मेन पॉइंट्स है जैसे दे रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. इनको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है. दे हैव लार्ज साइज शोरूम्स टू सेल गुड्स. अब अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो उसको शो करने के लिए उनको शोरूम भी बड़े चाहिए. They are generated located at a central place or in shopping centers. ये आपकी सिटी के बीचों बीच ओपन होते हैं. सेंटर पॉइंट भी होते हैं जहाँ पर सबको ही ये सेंटर में अवेलेबल हो ताकि हर कोई पर्सन उन तक पहुंच सके. A large number of customers visit these showrooms. मोस्टली हर ब्रांड का सामान ये रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हर तरह के कस्टमर यहाँ पर उनके पास आएंगे. ओके. तो मोस्ट कॉमन जो इनमें फॉर्म्स आती है वो क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर है, मल्टीपल शॉप्स हैं, मेल ऑर्डर रिटेलिंग है, मॉल्स मैंने आपको भी बताया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं, सुपरमार्केट्स वगैरह है. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लार्ज स्केल, जो लार्ज साइज है, सॉरी, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप. ओके. तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं? Departmental store is a large retail showroom having a number of departments under one roof, each department specializing in one line of product. Right? इसमें क्या है कि एक ही छत के नीचे आपको नंबर ऑफ वैरायटीज मिलती है, नंबर ऑफ छोटे छोटे शोरूम बने होते हैं और हर प्रोडक्ट मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे अगर क्लोथ्स हैं तो क्लोथ्स की वहाँ लाइन होगी, अगर आगे अगर सपोज क्रॉकरी का सामान है तो क्रॉकरी का ही रहेगा. ऐसे ही ईच ऑफ द डिपार्टमेंट इज लाइक अ सेपरेट शॉप. आपको ऐसे लगेगा कि हर कोई एक सेपरेट शॉप है विद सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, सेलिंग एंड अकाउंटिंग. Administrative activities of the departmental store are managed by the general manager. इसको मैनेज करता है जनरल मैनेजर और वो अपॉइंट करता है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट के लिए वो अलग से मैनेजर को अपॉइंट करते हैं आगे. ठीक है. आगे इसके मेन जो फीचर्स हैं, there are many departments under one roof. All kinds of things are available in them. They are generally situated in big cities. The customers are provided many free services. Efficient salesmen work here. There is a separate manager for every department and things of good
quality are available here. Okay, so departmental store originated in France in 1852, जो start हुआ था सबसे पहले, and initially 2 departmental store जिसका नेम भी आगे गिवन है ये established हुए थे. Okay. Now the establishment of departmental store. पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं ताकि डिपार्टमेंटल स्टोर को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन. Departmental store should be established in a modern city. Then it should be located at a place inhabited by the rich people of the city. Second point, facilities. There should be a big building for a departmental store so that along with various departments, some facilities for the customers may also be provided. These facilities include rest house, post office, telephone, telegraph office, library, canteen. ये सब facilities भी इसमें extra दी जाती है. And third is a decoration. Attract करने के लिए customers को different departments of the departmental store should be decorated differently. अलग से जैसे suppose अगर बच्चों के लिए कुछ department है तो उसको अलग से decorate किया जाएगा कि पता चलता है कि वो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, मतलब या कुछ भी उसके ऊपर ऐसे डेकोरेशन की जाएगी कलरफुल कि वो पता लगता है कि बच्चों के लिए बनाया गया है. ऐसे ही अगर कोई जेंट्स का है तो उसके लिए अलग से उसकी डेकोरेशन रहेगी. एक्सटीरियर डेकोरेशन डिफरेंट रहेगी, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऐसे दोनों. एक्सटीरियर डेकोरेशन शुड बी एबल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, मतलब ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों, बड़े अट्रैक्ट हों, पर्टिकुलरली उनके लिए वो अलग से डिपार्टमेंट ऐसे डिजाइन किए जाते हैं. देन है परचेज एंड सेल प्रोसीजर. ऑल द सेल्स डिपार्टमेंट send their orders for necessary things through sales manager to the purchase manager. The sales manager place order for the goods. When the goods are received in the store, they are matched with the order place. यहाँ पर परचेज और सेल प्रोसीजर क्या रहेगा, जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट है यहाँ पर वो सेंड करते हैं ऑर्डर, ठीक है, सेल्स मैनेजर के थ्रू. किसको करते हैं, परचेज मैनेजर. और सेल्स मैनेजर क्या करता है, प्लेस करता है ऑर्डर फॉर द गुड्स. व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड, जब गुड्स रिसीव हो जाती हैं तो दे आर मैच, तो फिर वो ऑर्डर के साथ उसको मैच करते हैं. देयर आफ्टर द गुड्स आर सेंट टू द डिपार्टमेंटल कंसर्न फॉर सेल. फिर वो सारी गुड्स जो है वो डिपार्टमेंट में लाई जाती हैं सेल करने के लिए. ओके, सो द कस्टमर्स आर सप्लाइड 2 copies of the cash memo by various sales. Out of these, 1 copy of cash memo is retained by the cashier at the time of payment, and other copy is handed over to the customer with the word paid. अगर उसने पे किया है कस्टमर ने तो उसके ऊपर लिखा होगा paid written on it. So along with it, the customer is also given a token. उसको एक टोकन भी दिया जाता है और बाहर जाने से पहले वो टोकन देख के उसको चेक भी कराता है, ठीक है. So while going out of the shop, the customer hands over the token to the gatekeeper. फिर वो टोकन गेटकीपर को देके रिसीव करेगा अपनी गुड्स. एंड द सिस्टम ऑफ सेलिंग ऑन क्रेडिट इज ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट इन द डिपार्टमेंटल स्टोर. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय. अ स्टाफ मैनेजर इज अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस. स्टाफ मैनेजर जो है वो अपॉइंट किया जाता है इसके लिए. ही हैज टू इंश्योर दैट competent employee are employed for every department and arrangement for their training is also made if needed. अगर कहीं किसी को जरूरत है तो उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है और सारे एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजर की है यहाँ पर. ओके, और वो यहाँ चेक भी करता है कि सब कुछ ओके चल रहा है, ये ठीक चल रहा है या नहीं. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज द एडवांटेजेस. नाउ वी विल चेक, वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर. क्या क्या इससे फायदे हैं हमें. अब फर्स्ट इज द इकोनॉमी इन लार्ज स्केल बिजनेस. All the benefit of a wholesale trade are available to the departmental store because of the large scale trade. This includes economy in transport and economy in placing order. लार्ज स्केल बिजनेस है ये, और इसमें जब आप इतना कुछ लेवल पे जाते हैं, होलसेल लेवल पे जाते हैं, तो ये सस्ता पड़ता है आपको सब कुछ. इसमें इकोनॉमिकली होता है वो, मतलब कंपैरेटिवली अगर आप कम सामान लेते हैं और बल्क पे लेते हैं तो उसमें आपको इकोनॉमिक रहता है.
सो ऑल द बेनिफिट ऑफ द होलसेल ट्रेड, जितने भी होलसेल ट्रेड के जो बेनिफिट थे, जो होलसेल मैंने आपको पहले कराया था, वो सारे बेनिफिट भी इसको यहाँ मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो इनको वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। इससे क्या होता है कि इकट्ठा ही सामान एक ही बार ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बार बार नहीं हमें देना करना पड़ता, तो अल्टीमेटली जो गुड्स हैं वो आपको थोड़ी सी चीप रेट पे पड़ती है। सेकेंड इज द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। मेनी एफिशिएंट एंड ट्रेन मैनेजर्स आर अपॉइंटेड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। यहाँ पर बहुत एफिशिएंट पर्सन्स को ही अपॉइंट किया जाता है, सो दे और आर स्पेशलिस्ट, वो अपने अपनी फील्ड में बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं। लाइक अगर कोई सेल्स मैनेजर है तो उसको पूरी नॉलेज रहोगी अबाउट सेल्स एंड और जो एंड ही सक्सीड्स इन परचेजिंग गुड्स थिंग्स एट अ मिनिमम प्राइसेस। उसको पता है कि कैसे परचेज करते हुए मिनिमम प्राइस पे परचेज करना है, और सेल करते हुए उसको मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट ऐड करके ही उसको सेल करना है। वो पर्सन अपने आप में बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। थर्ड इज अ सेंट्रल लोकेशन। डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ जो एस्टैब्लिश होता है वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में, यानी कि बीचों बीच होते हैं। सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स देम। बहुत चारों तरफ से, हर तरफ से लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, इससे भी उनकी सेल्स इंक्रीज होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इजी एडवर्टाइजमेंट। So being a big organization, a departmental store can adopt modern system of advertisement. Expenditure on such an advertisement is excessive, but expenditure is distributed among different departments. अब देखो एक ही डिपार्टमेंट का वो करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे उसको, लेकिन यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसका सारा एक्सपेंडिचर डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट भी इजीली हो जाती है, क्योंकि सिंगल एडवर्टाइजमेंट से वो मल्टीपल चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, जितने भी चीज़ें वो वहाँ पर सेल कर रहे हैं, और जितने भी उनके अंडर आगे डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिपार्टमेंटल स्टोर मेक अरेंजमेंट फॉर द होम डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्री ऑफ एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है उसके लिए भी, और फ्री डिलीवरी भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। So sometimes the home delivery of good is made in respect of order placed over telephone. कुछ लोग टेलीफोन पे भी ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनको भी फ्री डिलीवरी दी जाती है। अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी हो चुका है। So since all the employees are efficient, every work is done quickly and economically. Then shopping facility. All kinds of things are available at departmental store. जब हर तरह की चीजें वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो different varieties of all things with different advantage are there. So customer can buy a thing of their choice. हर ब्रांड का सामान आपको वहाँ पर मिलेगा। ओके, तो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा लेना है। हर प्राइजेस का, हर तरह का रेट वहाँ पर मेंशन होगा। तो ये शॉपिंग फैसिलिटी इजीली आपको वहाँ पर अवेलेबल होती है। आप बहुत देख के, अच्छे से देख पा रख के अपना सामान चूज कर सकते हैं। Then service element. The basic purpose of the establishment of departmental store is to pay more attention to provide goods services to the customer than to earn more profit. यहाँ पर सर्विसेज पे भी मेन अट्रैक्ट मतलब मेन ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है, प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट से पहले सर्विसेज पे कस्टमर को अटेंशन दी जाती है, उस पे मेन फोकस किया जाता है। So many services are provided in the departmental store which have no relation with the sale of things. बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसका कि कस्टमर की सेल से कोई कनेक्शन नहीं होता, इस तरह की फैसिलिटी भी दी जाती है, जैसे लाइक फैसिलिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, लाइब्रेरी, रेस्ट हाउस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन. So being a big business organization, modern means of advertisement like newspaper, internet, television can be adopted. इसके लिए इसके थ्रू इनको प्रमोट किया जाता है, तो दे मे बी एक्सपेंसिव बट स्टिल द ऑर्गेनाइजेशन गेट प्रॉफिट बाय अडॉप्टिंग। सो दीज मींस हेल्प रेजिंग द सेल्स कॉन्सेप्ट। ये इसकी सेल्स को लगातार बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट 9th पॉइंट इज नो फियर ऑफ चीटिंग। इसमें चीटिंग का कोई भी डर नहीं रहता, because the departmental store enjoy a great reputation and they store things accordingly. So the confidence of the customer in them is increasing. So this confidence will help to make them more popular. तो और पॉपुलर होने में वो चीज हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। जहां हमने इतनी इसकी एडवांटेजेस देखी हैं, तो
Yes, so because departmental stores are some defects. First is the huge capital. कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत big amount यानी कि big investment की जाती है, तो huge capital. Since it is retail organization, तो require lot of capital. यहाँ पर capital भी बहुत ज़्यादा invest करती है, बहुत ज़्यादा invest किया जाता है. It needs a building, many other services for the customer. बहुत सारी जरूरत है. और जो सामान भी परचेज किया जाता है बल्क अमाउंट बिग उसकी क्वांटिटी परचेज की जाती है. So, store requires large capital.